another internship that you did, which was the highest paying intern at your time in college at Sprinkler, which was paying 2 lakh rupees as a stipend. लक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तो इसको इग्नोर मत करना। तो जाना मेरा उल्टा चल रहा था, मेरा दिमाग चल रहा था कि so that I don't have to go to Wells Fargo. People nowadays will consider this as a first world problem. 21 कंपनी से रिजेक्ट हुआ था। वेल्स फार्गो पहली कंपनी थी जिसमें मेरे को इंटरव्यू मिला था। क्या मेरा जो हेड ऑफ इंजीनियरिंग मेरे साथ वन ऑन वन सेशन कर रहा है वो प्रॉपर एक्टिवली बी इन्वॉल्वड इन द हायरिंग ऑफ कंपनी। Okay, as you mentioned hiring, you are actively involved in that. Second, एआई किस लेवल पे ऑपरेट करे तो एटलीस्ट कोड लेवल वाली ये चीजें इट इज परफॉर्मिंग एट पार विद लाइक ओवर 1+ ईयर एक्सपीरियंस एसडी1। इनफैक्ट कोडिंग वो मेरे से ही बेटर कर लेता कभी बार। एसडी1 लेवल पे हायरिंग थोड़ी सी ड्रॉप हुई है, ठीक है। अबव 2 ईयर इट इज इंक्रीजिंग। बिल्ड इन पब्लिक का एंटायर सेंस ही दो चीजों से है। करिकुलम बहुत आगे जा चुका अलग है, कॉलेज का करिकुलम पुराना हो चुका है। इट्स नॉट दैट, मतलब ये करिकुलम आज भी रेलिवेंट है फॉर मी, एंड तभी आज मैं महत्व पॉडकास्ट पे आ रहा हूँ, तभी आज मैं इतना सुन पाया हूँ कि हम पे पॉडकास्ट दे पा रहे हैं, ठीक है। recording already start हो गई. So, welcome Ishan Bhaiya. First of all, thanks for doing this. Let me introduce you first of all to the listeners standing in right now. So, you graduated from DTU in 2023 with mathematics and computing branch and made your way into tech. Did multiple internships, including one with like some of the best with Wells Fargo and Sprinkler, which was the highest paying intern at your time as well. And then got a really good on-campus placement at Sprinkler itself after the internship, and then worked there for a while and switched your company to Uber as a software engineer too, within like in a very early experience. So that was it. While being in college, you did multiple competitions as well and did really well in it. One of them being Google Kickstart, which is although discontinued from the last year, but like you actually did really well. So yeah, that was pretty much it that I was able to find on LinkedIn. So did I get anything wrong or miss something? No, like that was mostly my journey in a brief. Yes, perfect. So we will be discussing about your whole college life, and like we will even cover the tech industry and AI hype in the industry. So we will cover all that. But for the start, let me start the context of this podcast by getting to know about your early college days. Like as currently I'm in my second year, just about to start my second year. I don't have a really fixed goal that where should I go in future in tech or non-tech or core something. There are many options. Being from mathematics and computing branch, there are many options that you have actually. Either consulting, either tech, and even finance as well at some point because you get to learn some subjects of that as well. So when you were in your first year, just getting into college after that JEE preparation phase, what was your goal and like how did it actually change to the direction which you are going in right now? That is So yeah, mostly like when I started with my engineering and all, I wasn't really sure on where, like, in terms of my career. As before that, I hadn't really done any coding or didn't have any computer science experience with me. So first and second year are mostly about exploring things. I explored a lot of fields. I explored sales, marketing, content writing, and coding, and website development, freelance. I did a lot of things here and there, and I also tried doing machine learning, data science, and trying to work on a research project. Although that was very brief, but like I tried all sort of things before like I started preparing for the internship season that happens in DTU, and I cracked Wells Fargo there. So it was mostly like trying a lot of things to figure out what actually interests me and where I want to go. ओके कूल 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 सो क्या कहते हैं आपकी कोडिंग जर्नी फिर कहाँ से स्टार्ट हुई थी लाइक आपने बताया दैट यू डिड एमएल एज वेल इन योर फर्स्ट ईयर डिड मल्टीपल थिंग्स इवन बट क्या कहते हैं व्हेन यू कैन से कि हाँ इस टाइम पे दैट वाज द पॉइंट व्हेन माय कोडिंग जर्नी एक्चुअली स्टार्टेड कोडिंग मैंने मतलब DTU ज्वाइन करते ही थोड़ा शुरू कर दिया था। लाइक उसमें आई स्टार्टेड लर्निंग पाइथन ऑलरेडी, ठीक है। बट लाइक उस टाइम मेरी अप्रोच बहुत थ्योरेटिकल थी क्योंकि जेई वाले फेज से आ रहा था। सो आई यूज टू स्टडी अ लॉट ऑफ थ्योरी एंड नॉट रियली इम्प्लीमेंट थिंग्स। ये लैंग्वेज पढ़ेंगे, फिर ये लैंग्वेज पढ़ेंगे, फिर ये लैंग्वेज पढ़ेंगे। एज अ बिगनर मुझे तो ये बताया था लैंग्वेज सीखो, तो मैंने बोला सबसे ज्यादा लैंग्वेजेस सीख लेंगे, वही सबसे बेस्ट है। तो आई यूज टू गो अराउंड एंड स्टडी अ लॉट ऑफ डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस।
but I wasn't actually building anything, so I won't call it as actually, learning programming, because programming is like practical until unless आप कुछ कोड करके कुछ build नहीं कर रहे हो. So I don't think you are learning. I think you are just मतलब going over things and not really gaining anything. I mean, अगर मैं जल्दी start कर सकता दोबारा तो if anyone asks me how to do that, I would just recommend them to pick up C++ or Java. They are low level, like they are not low level, higher level languages only, but they are like you get to explore everything through them. Basically, you explore memory management, you explore OOPS concept, you get to explore different kind of things. All the data structures are present there. So it's a very good starting point as a language for anyone. And वो शुरू करके I would recommend कि DSA and थोड़ा थोड़ा शुरू करो. Once you are familiar with DSA concepts, you can either start with development or you can go the CPU route. Okay, perfect. So जैसा आपने अभी freshers को that how they should approach in starting. So what habits or mindset shifts in your first 2 years helped you stand out later? Definitely आप perfect तो like कोई नहीं होता है कि you know that what is coming for you in future. So what habits and mindset shifts you did that actually helped you later? Was there any major mistakes that you made early on that you would caution juniors against? Like वो उन्हें नहीं करनी चाहिए. There was a mindset shift in first or second year, I would say. First and second year में मैं बहुत ज़्यादा randomly explore कर रहा था. And in fact, उन 2 years में इतना output भी निकला नहीं मेरा. It's mostly what I did in third and fourth year that got me to where I am. But like, if you ask me, I think the correct question to ask is what different did I did in third and fourth year that I wasn't able to do in my first 2 years. And that was कि बैठ के काम नहीं कर रहा था मैं इधर उधर सब कुछ फोमो में करे जा रहा था. तो ये पकड़ लिया, ये पकड़ लिया, ये पकड़ लिया. ब्रेड्स बहुत ज्यादा कवर करी बट किसी चीज को डेप्थ में नहीं करा. थर्ड ईयर में जैसी मेरी इंटर्नशिप लगी थी, आफ्टर दैट मतलब मैंने सीपी वगैरह, मोस्टली उस टाइम लोग सीपी वगैरह बकचोदी कर ली, बट मेरा उल्टा हो रहा था. मेरा था कि अब नहीं, अब थोड़ा करते बैठ के और बेटर. तो मैंने सीपी पकड़ ली थी एंड उस समय थोड़ा कोविड मतलब लॉकडाउन था ही, तो हम घर पे ही थे. तो मेरा रूटीन फिक्स था, उसमें मैं उठते ही सीपी वगैरह करता था. ठीक है. एंड मतलब दिन में काफी टाइम उस पर स्पेंड करता था. मतलब मुझे ऐसा नहीं कि मैं जेई वाला रूटीन या जबरदस्त नहीं है. आई वॉज एक्चुअली इंजॉइंग. अगर तुम देखोगे सीपी वगैरह में जाओगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग, पजल्स एंड वैसे होता है. इट्स रियली मतलब एक किक आती है अगर तुम वो सॉल्व कर पा रहे हैं. एंड फिर कॉन्टेस्ट होता है, कॉन्टेस्ट में लाइव रेटिंग दिखती है एंड ऑल दोस थिंग्स. आई वाज रियली एंजॉयिंग दैट टाइम एज वेल. तो मैं काफी ज्यादा पूरे पूरे टाइम सीपी कर रहा था. सो आई थिंक लाइक मैंने उस टाइम व्हेन आई स्टार्टेड आई वाज अ न्यूबी ओनली ऑन कोड फोर्सेस. And within, I think, 2 to 3 months, I became an expert. Like I had started in October or November, and by January, I was an expert. Okay. So yeah, but like expert के बाद I stayed there only, and I was fine with it as well because that is enough mostly for placements as per what I have seen. जितना DTU के level पे जितना competition, और even other colleges also जो मेरे friends थे, expert is a good range to target if you want to be, very confident about OAs and TSA rounds for placements. तो वो चीज थी. एंड देन ऑब्वियसली फोर्थ ईयर में मैंने, जैसे थर्ड ईयर में मैंने मोस्टली सीपी एंड डीएसए में टाइम स्पेंड करा था. फोर्थ ईयर में आई डिड अ लॉट ऑफ इंटर्नशिप. पहले तो वेल्स फार्गो की, देन आई जॉइंड एट कंसल्टिंग फर्म वेयर आई वाज लाइक वो काइंड ऑफ उनकी टेक टीम बहुत स्टार्टिंग से. तो देयर आई जॉइंड एंड वहाँ पे इंटर्न ही थे सारे टेक टीम में. हम तो हमने खुद ही सारा बनाया. तो आई गॉट अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी टू डू एंड टू एंड सिस्टम डिजाइन देयर. मतलब सिस्टम बनाया था वहाँ पे काफी अच्छा इन टर्म्स ऑफ फॉर एन like fresh out of college intern. So it was a very good opportunity. And then lastly, I joined for a 6 month intern at. I think मतलब डिफरेंस वही था कि एक चीज को पकड़ के मैंने जब जब करा है थर्ड ईयर में भी करी, फोर्थ ईयर में. अदरवाइज फर्स्ट सेकंड ईयर में होम में सब चीजें ट्राई करी, दैट डजंट पैन आउट. Okay. आप ऐसा सोचते हो that you should have done code courses early on in your college life when you did? Okay, so अगर मतलब if I had to like do over 4 years of my college life, probably like there is no correct way. If you are asking me क्या correct रास्ता है, CP development, all of these are good routes. I would probably have started for the first 6 to 8 months. I would have done DSA and competitive programming until the end of first year. ठीक है. Until I become somewhat confident. उसके बाद it's mostly like चलते रहता है. फिर तुम्हें आदत हो जाती है एंड यू आर एक्चुअली वेरी मच इंटरेस्टेड. तो उसके साथ साथ फिर मैं डेव वगैरह शुरू कर देता सेकंड ईयर से. एंड डेव डज नॉट मीन वेब डेवलपमेंट. बेसिक सीखे इज फाइन. एक
फंडामेंटल डिफरेंस होता है जो कि कॉलेज के लोग नहीं समझते, विच इज डेवलपर और इंजीनियर में डिफरेंस। डेवलपर इज समवन हु कैन बिल्ड वेबसाइट्स, वेब डेवलपर होता है, ऐप डेवलपर होता है, तो ऑटोमेशन डेवलपर्स होते हैं। बट इंजीनियर इज समवन डिफरेंट। इंजीनियर इज जो अंदर तक चीजों को समझता है एंड उसको पता है कि क्या सही डिसीजन है, एंड बिल्डिंग थिंग्स इज समथिंग जो डेवलपर्स भी कर सकते हैं। इंजीनियर उसकी एक लेवल ऊपर ऑपरेट करता है, ही नो व्हाट्स द करेक्ट वे टू बिल्ड। वो बड़े सिस्टम्स बना सकता है। डेवलपर को तुम नई चीज दोगे, ही कैन बिल्ड अ वेबसाइट फॉर यू। बट इफ आई आस्क डेवलपर टू स्केल इट टू लाइक अ लार्ज यूजर बेस, तो ही डजंट डू दैट। उसको कंप्यूटर नेटवर्किंग के ओएस के डीबीएमएस बेसिक चीजें में, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, आर्किटेक्चर, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, ये सब वही सारे कोर्सेज है जो कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं। मैंने भी यही करा था कॉलेज में। हम इनको बोलते हैं कि दीज आर यूजलेस कोर्सेज, करिकुलम बहुत आगे जा चुका, अलग है, कॉलेज का करिकुलम पुराना हो चुका है। इट्स नॉट दैट, मतलब ये करिकुलम आज भी रेलिवेंट है। रेलिवेंट का ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है करिकुलम का, क्योंकि इंडस्ट्री में जब मैं अब इसको यूज करता हूँ, मेरे काफी सारे ऐसी चीजें जो रेगुलर बेसिस पे यूज को मैं अब कोरिलेट कर पा रहा हूँ, तो अब मैं उसको और डेप्थ में। लेकिन आई थिंक कॉलेज में अगर ये पढ़ा जाए में, तो देयर इज अपॉर्चुनिटी। लाइक कॉलेजेस में प्रॉब्लम क्या है, डीटीयू में पढ़ी, इफ आई स्पीक टू दैट, पढ़ा देते हैं लेकिन दे डोंट टीच। फर्स्ट ऑफ ऑल, टीचर्स आर नॉट टीचिंग इट वेरी गुड, क्योंकि उनको भी पूरी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है नहीं। उन्होंने वैसे कोर्स अपना रट लिया है, वो पढ़ाए जा रहे हैं वैसे। एंड सेकंड, क्योंकि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। जैसे मेरे को कंपाइलर डिजाइन पढ़ाया, मेरे को अच्छा ही लगा, मैंने पढ़ा भी बहुत अच्छे से। अब मुझे कुछ याद नहीं, क्योंकि मेरे से कंपाइलर नहीं बनवाया, उसको नहीं कराया। तो आई थिंक अगर मेरे पास अपॉर्चुनिटी होती, मतलब मैं वापस जा सकता, तो आई वुड हैव स्टडीड दीज सब्जेक्ट्स मोर बेटर। बट सिर्फ स्टडीड, मतलब उनको प्रैक्टिस इम्प्लीमेंट करे। ओएस पढ़ रहा हूँ तो खुद से शेल इम्प्लीमेंट करा, खुद से एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने का ट्राई करा, बहुत छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं। ठीक है, डीबीएमएस पर खुद से मैंने एक डेटाबेस बनाने का ट्राई करा। डेटाबेस का मतलब मैंने वो बनाया कि बाइनरी ट्री में कैसे सारा स्टोर रखा हो, एलएसएम ट्री वगैरह सब। कंप्यूटर नेटवर्किंग का खुद से टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल एंड यूडीपी यूडीपी क्लाइंट्स, चैट रूम्स बनाए। ठीक है, वो ठीक है, कंपाइलर डिजाइन पर एक खुद से लेक्चर बनाया, वो खुद से पार्सर बनाया, ये सब बनाया। ठीक है, तो इस टाइप की चीजें आई थिंक ज्यादा रिटर्न देगी लॉन्ग टर्म में। Okay. So, like, it is a quite unconventional advice of, like, because of their own reason, people बनाते हैं. Just because of that, often they say कि college courses are not like really updated, और तुमको definitely कुछ और करना चाहिए, उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए. But you pointed this, वो yeah. Obviously, जो ये सब चीज, these are not required for you in placements। उनसे placements में बेसिक्स के ऊपर, because they know how इंडिया में थिंग्स चल रही हैं, एक पॉइंट तक रिक्वायर्ड भी नहीं होता। बड़ी कंपनी के पास बजट होता है, यू आर ट्रेनेबल, और वहां पे जाके अंदर तुम पैटर्न मैचिंग ही कर रहे होते हो। अच्छा, ये किसी ने इम्प्लीमेंट करा, मुझे सिमिलर चीज इम्प्लीमेंट करनी है, बस मुझे ढूंढना है वो कहाँ इम्प्लीमेंटेड है। और अब तो एआई है, तो वो ढूंढना भी तुम्हें नहीं पड़ता, एआई खुद ही ढूंढ के तुम्हें दे देगा, तुम बस टैप 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 ऐसे करो। ठीक है, तो इट्स लाइक अभी वो एफर्ट नहीं है। बट अगर तुम्हारे फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होंगे ना, तो यू कांट ग्रो एज एन इंजीनियर। कॉलेज करिकुलम पुराने हैं, जो कि मैंने एग्री कराई, बट लाइक बुक्स एंड वो सब जो रेकमेंड करते हैं, दे आर गुड। वो फॉरेन ऑथर्स की होती है, दे आर एक्चुअली गुड बुक्स। So, as आपने while ये आंसर करते हुए बताया था that how would you approach to the college curriculum? So, you did all of this in your college, even though some of your college life was COVID. But क्या कहते हैं, अगर कोई like आप भी जिस टाइम आपके college life में कोविड यानी कोविड नहीं था, और जो अब juniors हैं who are like actively managing their college life and this preparation, how would you recommend to themselves to balance academics, skill building, and applying for internships during that? देखो, कॉलेज की एकेडमिक्स दूसरे कॉलेजेस का तुम्हें पता नहीं, बट डीटीयू में तो बहुत चिल होती है। ठीक है, मिड सेम से एक हफ्ता पहले पढ़ लो, एंड सेम से 2 हफ्ता पहले, तो उसमें से चीजें आ जाती। ठीक है, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू गो अहेड इन इंजीनियरिंग एंड लाइक बिकम अ गुड इंजीनियर लाइक इन फ्यूचर, रिया एक तुमने मतलब कंपोनेंट बेस्ड फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क सीख लिया, व्यू या रिएक्ट। ठीक है, बैकएंड में एक कोई अच्छा फ्रेमवर्क सीख लिया, जिसमें तुम्हें बेसिकली बैकएंड के फंडामेंटल्स क्लियर हो गए कि ठीक है, मिडलवेयर्स क्या होते हैं, कंट्रोलर्स क्या होते हैं, एपीआईज कैसे बनती है, वैलिडेशन कैसे होती है, पासवर्ड हैशिंग, ये सब मतलब बेसिक जो वेब के अराउंड कंस्ट्रक्ट्स है, वो सब तुमने सीख ली। दैट इज फाइन। अब तुम इंजीनियरिंग और डेप्थ में घुसो ना, अलग अलग फ्रेमवर्क से सीखने हैं, बार बार सेम एप्लीकेशन फुल स्टैक वाली अलग अलग क्यों बना। तो एज एन इंजीनियर मतलब तुम, जो मैंने जितने सारे प्रोजेक्ट्स बनाए, तुम वो सब कर सकते हो। तो एक तो वो चीज होगी, दैट इज हाउ यू कवर योर करिकुलम एंड डेवलपमेंट। ठीक है, एंड सेकंड वो ये सीपीडीएस है। लाइक आई एम प्योरली स्पीकिंग दिस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव, इफ यू वांट टू गेट अ गुड ऑन कैंपस प्लेसमेंट, ठीक है, या इवन गेट अ गुड ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। ठीक है, बट अगर तुम मतलब दूसरी टाइप की चीजों में इंटरेस्टेड हो, लाइक एंटरप्रेन्योरशिप या वो, तो डेफिनेटली दिस इज नॉट द राउट फॉर दैट। तो ठीक है, यू लाइक रियली ब्यूटिफुली एडवाइस द जूनियर कि उन्हें कैसे करना था। वो ऑब्वियसली लाइक इन कॉलेजेस लाइक केटीयू वी हैव इनफ टाइम अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स एज वेल
at times they basically deviate themselves because of societies, events जो भी होते रहते हैं. First year में तो सबसे डिविएट करते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ सोसाइटी एंड इवेंट्स, वही होता रहता है. मैंने ये शुरू करा, दोस्त ने करी, तो मैं भी यही कर देता हूँ, तीसरे दोस्त ने शुरू करा तो हम दोनों ये कर रहे थे. right, right. Okay, so yes, you told about preparation phase. You told about how you approached your own college life apart from this placement and academic. So basically, आपने थोड़ा बहुत तो like preparation के बारे में बताया, but अगर आप इस वे में बताओ that if like here कोई third और fourth semester में अगर कोई अभी and he just want to like start his preparation, he knows basic coding, like वो इतना सब्सटेंशियल नहीं है कि उसे इंटर्नशिप मिल पाए, उस वजह से नाउ ही वांट्स इंटर्नशिप एट द एंड ऑफ हिज सेकंड ईयर जब इंटर्नशिप सीजन स्टार्ट होगा. देन हाउ वुड यू टेल हिम टू अप्रोच द प्रिपरेशन? थर्ड सेमेस्टर में आई वुड से दैट यू स्टिल हैव टाइम. डीएसए के फंडामेंटल से शुरू करो, सारे डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ो अलग टाइप के. पहले लैंग्वेज से शुरू करो, अगर लैंग्वेज भी नहीं आती, ठीक है, तो लैंग्वेज पढ़ो. उस बेसिक तुम्हें उसके अंदर चीजें आनी चाहिए सारी, एरे, स्ट्रिंग्स, ये सब, मतलब सारी चीजें करनी आनी चाहिए. इंटरनल थोड़े बहुत फंक्शंस पता होने चाहिए, ठीक है. वो करके सेकंड चीज आती है डेटा स्ट्रक्चर सीखना. डेटा स्ट्रक्चर सीखोगे, उसमें बहुत सारे है, लिंक लिस्ट, स्टैक्स, क्यूज, ट्रीज, टीपी, ग्राफ, ऐसे बहुत सब कुछ है. वो सब कवर करोगे, सेकंड पार्ट ये हो गया. थर्ड पार्ट है लैंग्वेज का. फिर ये मतलब डेटा स्ट्रक्चर्स कवर करते करते ही तुम थोड़ा बहुत जब क्वेश्चंस पे जाओगे, तुम्हें फिर लैंग्वेज, हर लैंग्वेज में एक अपनी खुद की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है. सी प्लस प्लस में उसको एचटीएल बोलते हैं, जावा में यूटिल्स लाइब्रेरी होती है, यूटिल्स पैकेज है, ठीक है. तो उसके तुम्हें फंक्शंस आने चाहिए फिर, ठीक है, जो कि मतलब बाय डिफॉल्ट इंप्लीमेंट कर दे. जैसे बाइनरी सर्च के फंक्शंस वगैरह सब है, तुम हर बार थोड़ी इंप्लीमेंट करोगे जाके, ठीक है. फिर तीसरी चीज है, ये छोटी चीज है तीसरी वाली. एक चौथी चीज आती है कि थोड़े बहुत एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह होते हैं, डिसजॉइंट सेट, यूनियंस, सेगमेंट ट्रीज वगैरह. ये चौथी चीज ऑप्शनल है, अगर टाइम बचता तो करना, बट इफ यू आर टारगेटिंग टॉप मोस्ट कंपनीज तो फोर्थ वाली चीज जरूरी है. अब इफ यू आर इन फोर्थ सेमेस्टर और अभी तुम कोडिंग के बेसिक से शुरू कर रहे हो, आई विल बी ऑनेस्ट, नहीं मिल पाएगी इंटर्नशिप जो टॉप वाली है, तुम्हारी बहुत ज्यादा किस्मत चल रही हो. लक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तो इसको इग्नोर मत करना. तुम देख रहे हो कि तुम्हारे आसपास, अरे यार उसने तो पढ़ा नहीं तो उसकी कैसे लग गई, क्या लक इंपॉर्टेंट होता है. जिस दिन तुम टेस्ट करिएगा क्या है, कैसे चल रहा है, उस पर बहुत चीजें डिपेंड करती है, ठीक है. बट लाइक दीज आर द फोर थिंग्स, ये चार चीजें कर लोगे तो यू आर सेट फॉर इन टर्म्स ऑफ टीएसए प्रोजेक्ट. कोई बेसिक फुल स्टैक प्रोजेक्ट होना चाहिए जिसमें देयर इज गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरव्यूअर टू एक्सप्लोर इनटू अदर एरियाज एज वेल, कि अगर अच्छा अगर इसको हम ऐसे इंप्लीमेंट करते थे. सपोज तुमने व्हाट्सएप पे फोन बनाया, तो इंटरव्यूअर कैन आस्क यू लॉट ऑफ थिंग्स इन दैट, कि अच्छा हाउ डू यू हैंडल मैसेजेस, कॉन्फ्रेंस करोगे, ऐसे बहुत सारी चीजें. तो प्रोजेक्ट तुमने भले ही छोटा सा फ्रंट एंड क्लोन बनाया, बट देयर इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरव्यूअर टू आस्क अ लॉट ऑफ सराउंडिंग क्वेश्चन. एक ऐसा प्रोजेक्ट होना जरूरी है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक इट्स लाइक नॉर्मल सीजन में इतना एक्सपेक्टेशन. एंड अगर आप अपनी इंटर्नशिप की बात करो कि जो आपको वेल्स फार्गो में मिली थी, this one thing was a differentiator which helped me to get my internship at Wells Fargo कि मैंने इस टाइम पे की थी, जो आई गेस मेरे को हेल्प कर गई टू गेट इंटर्नशिप देयर. देखो ऑनेस्टली उस टाइम मैंने बोला कि कितना प्रिपेयर करना है, ठीक है, लेकिन मैं उस समय सिर्फ सेकंड स्टेज ऑफ प्रिपरेशन पे था. मतलब मुझे डेटा स्ट्रक्चर आता था, लैंग्वेज के बेसिक्स आते, बट लाइक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी नहीं आती थी, और मुझे एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स, तो नॉर्मल डेटा स्ट्रक्चर्स के भी क्वेश्चंस हैं, मैं थोड़ा बहुत इधर उधर बेकार कर. मैं मतलब उस समय जस्ट सेकंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर के मैंने बस डेटा स्ट्रक्चर रिवाइज कर दिया, मैंने पहले ऑल दो कर रखे थे. ऑब्वियसली मैं स्टार्टिंग में कितना, आई थिंक 21 कंपनी से रिजेक्ट हुआ था. वेल्स फार्गो पहली कंपनी थी जिसमें मेरे को इंटरव्यू मिला था, एंड आई क्रैक दैट. काफी इजी इंटरव्यू था, ठीक है, इंटरव्यू वाज वेरी इजी, विच इज व्हाई लाइक मतलब ऐसा कुछ था नहीं जिसने मुझे स्टैंड आउट करवाया. एंड सेकेंडली आई थिंक तुम्हारा एक क्वेश्चन ये हुआ कि हाउ डू वन गेट पीपी वन एंड ऑल दोस थिंग्स. तो आई थिंक लाइक उसमें भी अगेन मतलब मेरा पर्सपेक्टिव ज्यादा हेल्प नहीं करेगा, बिकॉज आई वाज लाइक जब मेरी वेल्स फार्गो इंटर्नशिप लगी, आई वाज प्रीटी क्लियर कि हाँ पीपीओ तो मिल ही जाना. सीइंग ऑन पास्ट एड्स एंड लाइक अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम सीनियर्स की कितना डिफिकल्ट होता है इंटर्नशिप वहाँ पे. इट वाज लाइक जितना मुझे समझ आया था काफी इजी था, तो मेरे को बहुत क्लियर था पीपीओ मिल जाना है. मेरा उल्टा चल रहा था, मेरा दिमाग चल रहा था कि हाउ डू आई इंश्योर कि पीपीओ से मैं दूसरा पैकेज निकला, दूसरा कोई ऑफर कर, सो दैट आई डोंट हैव टू गो टू वेल्स फार्गो. ठीक है, बिकॉज लाइक आई वाज सीइंग कि उस समय 2021 22 23 वाला एरा था ये, तो उस समय ऑफर बहुत क्रेजी लेवल पे जा रहे. तो जब तुम्हें आसपास ऐसे दिख रहा होता है तो तुम्हारा भी मन करता है कि भाई तुम भी और ऊपर. तो मेरा वही वाला फेज चल रहा था, तो आई वाज थिंकिंग इन द रिवर्स वे कि हाउ डू आई अवॉइड दिस पीपीओ. ओके. और मतलब मेरा वही हुआ था कि उस समय इंटर्न वाज वेरी चिल, आई वाज एबल टू डू इट वेरी इजीली.
बट व्हाट आई वुड से इज कि इंटर्न का अभी से इतना प्रेशर मत लो। अगर तुमने डेव कर रखी है, बेसिक फुल स्टैक एप्स बनाने आते हैं, ठीक है, और थोड़ा बहुत और तुमने इंजीनियरिंग कोर्सेज को अच्छे से कर रखा है, तो आई वुड से कि इतनी डिफिकल्टी नहीं होगी। ऑब्वियसली थोड़ी बहुत चीजें पढ़नी पड़ेंगी, टाइम देना पड़ेगा इंटर्न में, बट हो जाता है। So many people nowadays will consider this as a first world problem. जो आप बोल रहे थे कि you wanted to avoid Wells Fargo PPO because of hiring nowadays, which we will definitely get into further in the podcast. So you told about the Wells Fargo internship, right? But there was another internship that you did, which was the highest paying intern at your time in college. That was product engineering intern at Sprinkler, which was paying, according to my research, 2 lakhs rupees as a Yeah. stipend. So how did that happen? ऑब्वियसली मतलब जैसे मैंने बोला कि इंटर्न सीजन में 20 कंपनी रिजेक्ट होता, और उस समय सबको था कि भाई एक अच्छा ऑफर फोड़ना है, ठीक है। तो मेरे को भी था इंटर्न सीजन में, और मतलब फिर हमने देखा भाई स्प्रिंकलर आ रही है और स्प्रिंकलर दे रही है महीने का 2 लाख, ठीक है। तो ऑब्वियसली भाई सबको होता है कि ये तो भाई लेजेंडरी इंटर्न है, ठीक है? मैंने सोचा भी नहीं था वो मेरी निकलेगी, ठीक है। मैं तो उस समय ये सोचा था कि ये तो बहुत सीपी वाले क्वार्टर्स के लिए, हम अगर बेसिक ऑफर निकाल ले चलता है, ठीक है। तो आई वॉज हैप्पी विद वेल्स फार्गो। मैं ऐसे वेल्स फार्गो को वो नहीं कर रहा, मतलब मैं बहुत ज्यादा खुश था मेरी वेल्स फार्गो निकली थी। एंड आई वाज लाइक कि अगर कुछ भी नहीं होता ना, तो आई विल वेरी हैप्पीली गो टू वेल्स फार्गो। दैट इज अ रियली गुड कंपनी, मेरे दोस्त वगैरह वहाँ पे काम करते हैं। एंड लाइक मेरी इंटर्नशिप एक्सपीरियंस भी वहाँ पे काफी अच्छा था। इट वाज लाइक कि कंपनी में काम भी डिसेंट है, ठीक है, एंड लाइक लोग भी काफी अच्छे हैं, कल्चर वगैरह भी अच्छा है, ठीक है। बस थोड़ा सा वो बैंकिंग कल्चर है, तो इन द सेंस कि थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है, मतलब रेगुलेशन ज्यादा होती है, बट दैट इज एक्सपेक्टेड, ठीक है, क्योंकि बैंकिंग कंपनी है तो वो सब ठीक है। बट देन लाइक इन फोर्थ, बेसिकली फोर्थ ईयर जब प्लेसमेंट्स वगैरह आती हैं, तो व्हाट हैपेंड वाज आई क्रैक लाइक ऑफर फ्रॉम स्प्रिंकलर, फुल टाइम ऑफर। उसके बाद द एचआर कॉन्टैक्टेड अस एंड दे टोल्ड अस कि योर फुल टाइम ऑफर इज कंफर्म्ड, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट इफ यू वांट टू डू एन 6 मंथ तो आप वो भी कर सकते हैं। योर 6 मंथ परफॉर्मेंस डजंट इम्पैक्ट योर फुल टाइम ऑफर, दैट विल रिमेन कंफर्म्ड नो मैटर व्हाट हैपेंस, ठीक है। तो लाइक आई वाज लाइक कि ठीक है भाई, फिर तो मतलब ऐसे है कि उल्टा काम भी सीखने को मिल रहा है 6 महीने, एंड That आई विल ऑल्सो टू अर्न अ लॉट, क्योंकि जैसा तुमने बोला स्टाइपेंड, ठीक है। तो तो मतलब मैंने फिर क्या करा था, मैंने मेरे ऑल दो पूरा साल के कोर्सेज बचे थे, बट फिर हमने थोड़ा एडमिन में रेस कर करके बार बार मैंने फिर कोर्सेज जो 8 सेम के थे वो मैंने 7 सेम में ले ली, मतलब अपने जो क्रेडिट्स पूरे करने होते हैं ना। तो आई डिड दैट, मतलब बाय 7 पर मेरे सारे सब्जेक्ट क्रेडिट्स पूरे हो गए थे। तो ओनली थिंग रिमेनिंग वाज एक ऑनलाइन कोर्स बचा था, मूव कोर्स जिसे टीटीओ में बोलते हैं, और एक मेरा मेजर प्रोजेक्ट का एवेल्युएशन बचा था। बाकी सारे कोर्सेज आई हैड कंप्लीट, उनके सारे क्रेडिट्स आई हैड कंप्लीटेड बाय 7 सेमेस्टर, और विच 7 सेमेस्टर मुझे काफी वियर्ड सब्जेक्ट्स भी लेने पड़े थे। मैं सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स पढ़ रहा था, ठीक है, और थोड़ा एनवायरमेंटल के सब्जेक्ट्स पढ़ रहा था, क्योंकि मुझे बस क्रेडिट्स पूरे करने थे उस सेमेस्टर में। अब मेरे को था कि डन करते इंटर्नशिप के लिए तो जाना ही है। तो मतलब द एक्सपीरियंस वाज लाइक दैट। तो इंटर्नशिप के लिए मुझे अलग से कोई इंटरव्यू नहीं देना पड़ा था, इट वाज जस्ट कि मुझे प्लेसमेंट लगी थी, तो उन्होंने अपने आप ही ऑफर कर दिया था, इफ यू वांट यू आर फ्री टू डू। okay, nice. And then you worked as there at Sprinkler for a while, and then you basically switched your company at Uber. So how did that, like, वर्क कल्चर कैसा था स्प्रिंकलर में? दैट आपने जैसे पहले बताया था अबाउट वर्क कल्चर जो थोड़ा सा हेक्टिक हो गया था स्प्रिंकलर में, एंड देन आफ्टर यू स्विच to Uber as a software engineer too, how did that change? Like now you have a senior level post as compared to freshers. So आपका वर्क कल्चर, आपका वर्क के लिए पर्सपेक्टिव कैसे थे? तो मतलब लाइक आई डिड 6 मंथ इंटर्न एट स्प्रिंकलर। उसके बाद नियरली लाइक 1 year 3 months मैंने स्प्रिंकलर में काम करा, एंड देन आई स्विच टू एज SD2 एट ऊबर। तो लाइक ऑब्वियसली मैं ये तो बोलूंगा कि आई वाज प्रीटी लकी कि इतनी जल्दी मैं SD2 बन गया, ठीक है। आई वोंट से कि ये दिस इज द एवरेज एक्सपेक्टेशन एवरेज, ठीक है, क्योंकि अ लॉट ऑफ माय जूनियर्स मतलब दे आस्क मी कि अगर मतलब इतनी जल्दी क्रैक करना है व्हाट शुड वी डू, एंड देयर इज नो पाथ टू दिस। लाइक मेरा बहुत, मैं मान रहा हूँ कि ठीक है, ऑल्दो मेहनत भी थी स्प्रिंकलर में थोड़ी बहुत, बट वो लाइक बहुत उसका कम कंट्रीब्यूशन था। इट वाज मोस्टली अराउंड लक कि सही टाइम पे सही ऑफर निकल गया, ठीक है। आई वॉज लुकिंग फॉर अ स्विच बिकॉज स्प्रिंकलर में मेरी थोड़ी लर्निंग उस समय तक कम हो गई थी, क्योंकि ऑब्वियसली मैं वहाँ पे ऑलमोस्ट लाइक 6 मंथ इंटर्न को इंक्लूड करे, तो आई वॉज देयर फॉर अराउंड 1 year 8 months, ठीक है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट एट स्प्रिंकलर लर्निंग वॉज रियली गुड, क्योंकि हमें काम बहुत ज्यादा करवाते थे वहाँ पे। तो इट इज अ डबल एजेड स्वॉर्ड। ऑब्वियसली यू लूज आउट ऑन अ लॉट ऑफ लाइक, जो तुम पर्सनल लाइफ में चीजें कर सकते हो कि तुम खेलने जा रहे हो दोस्तों के साथ, या अब सिंस तुम पहली बार पैसे कमा रहे हो तुम बहुत सारी इंजॉयमेंट भी कर सकते हो, बट लर्निंग बहुत ज्यादा हुई थी। इनफैक्ट अगर लाइक इवन दो आई वॉज हैविंग 12 to 14 hours days a lot there,
But अगर I have to start my career again, I would still prefer Sprinkler because like it gave me a really good jump start. मतलब मुझे दिख रहा था difference because I was getting to design systems end to end. और मैं सिर्फ as a backend engineer नहीं काम कर रहा था, even though that was my job role. end to end सारी चीजें कर रहा था, मैं DevOps भी handle करना पड़ता था वहाँ पे, backend में भी ऐसे नहीं सिर्फ API बना रहे हैं, database layer वगैरह सब कुछ। और database के अंदर ऐसे नहीं कि बस तुमने डाल दिया, तुम्हें अच्छे से इन डेप्थ पता होना चाहिए कि MongoDB काम कैसे कर रहा है, क्या चल रहा है। वेरी डिफरेंट थिंग फ्रॉम नॉर्मल कंपनी, जैसे मैं ऊबर में या किसी और जगह हूँ, तो मेरे जो वहाँ पे इंजीनियरिंग लीडर्स वगैरह थे, दे वर वेरी लाइक अ लॉट वेस्टेड इन माय ग्रोथ। तो जब भी जैसे वो इंडिया आ रहे हैं, मेरे साथ वन ऑन वन सेशन हो रहा है, ठीक है, मेरे जो हेड ऑफ इंजीनियरिंग मेरे साथ वन ऑन वन सेशन कर रहे हैं, वो प्रॉपरली मेरे वो पूछ रहे हैं, जो बाई वीकली वैल्यूएशन हो रहा है, मंथली ऐसे वन ऑन वन मैनेजर क्या हो रही है, उसमें कॉन्स्टेंटली मेरे से पूछा जा रहा है कि अच्छा क्या लर्निंग करी, क्या नया सीखा। अपार्ट फ्रॉम जो मेरे 12-14 घंटे काम करवा रहे हैं, दे एक्सपेक्ट अस टू कॉन्स्टेंटली ग्रो एज इंजीनियर्स। तुम ज्वाइन होते हो वहां पे तो तुम्हें एक पूरा प्रॉपर पाथ दिया जाता है कि अच्छा जावा वगैरह ये सब सीखनी है। दैट इज नॉट वेरी सरफेस लेवल कि तुम बस काम कर पाओ, वो पूरा आगे तक जाता है कि तुम एक अच्छे लेवल पे इंजीनियर बन पाओ, ठीक है। एंड फिर वहां पे तुम एंड टू एंड सारी टेक्नोलॉजीज तक, since अभी स्प्रिंकलर उस लेवल पे ग्रो नहीं हुई थी एज अ वेरी बिग टेक कंपनी, ठीक है, बट इट वाज नॉट अ वेरी स्मॉल स्टार्टअप एज वेल, इट वाज ओवर लाइक $5 billion जब मैंने ज्वाइन करा था। तो आई गॉट टू लाइक वर्क एट स्केल, बट एट द सेम टाइम थिंग्स weren't सो डेवलप्ड कि मैं एब्स्ट्रैक्टेड था चीजों से। तो मुझे सारा रॉ लेवल चीजों पे काम करना है। मैं कुबरनेटिस क्लस्टर में जाके खुद से क्वेरी कर रहा हूँ चीजें, खुद से सारे डिप्लॉयमेंट्स वगैरह, ठीक। मैं काफका के क्लस्टर्स हैंडल कर रहा हूँ, मोंगो डीबी के क्लस्टर्स हैंडल कर रहा हूँ, रेप्लिका सेट हैंडल, इलास्टिक क्लस्टर्स हैंडल कर रहा हूँ। और सिर्फ क्लस्टर्स हैंडल करना मतलब ऐसे नहीं कि हैंडल कर रहा हूँ, मतलब आई वाज एक्चुअली डीबगिंग प्रोडक्शन इश्यूज इन दैट। तो इंफ्रा लेवल चीजें कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और फिर मतलब प्रोडक्ट लेवल चीजें भी कर रहा हूँ कि अच्छा कैसे हम बैकएंड में कैसे ऑप्टिमाइज कोड लिख सकते हैं, वो सब चीजें। दैट एक्चुअली हेल्प मी ग्रो बाय अ लॉट। So, what made you switch to Uber, and then how was your change in work culture? तो ऑब्वियसली उबर इज अ वेरी लाइक वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी, ठीक है, काफी बड़े स्केल पे ऑपरेट करते हो। तो ऑब्वियसली यहाँ पे चीजें डिफरेंट है, थिंग्स आर नॉट सो फास्ट पेस्ड हियर बिकॉज दे कांट मूव सो फास्ट दैट थिंग्स स्टार्ट टू वेट, ठीक है। Yeah. But like the difference is their engineering and their tech is much more evolved than it was at Sprinkler. Okay. So obviously there are like different things there. My work-life balance is much better compared to Sprinkler. But obviously work-life balance better over, so that means that learning also takes a hit. So overall, yeah, but like at this stage, I'm fine with that because I've already, learned there. Now I wanted to explore big tech as well. So इसलिए I'm right now, it's going really good. I have got to work on a lot of projects. The one different thing is Sprinkler was B2B, okay? So whatever features I built, it was like, yeah, I built that for the client and they used to use that, but I was never able to see that myself. Like, मतलब मैं अपने आप उसको एप्लीकेशन वगैरह में यूज करना मेरे लिए नहीं था. Difference in Uber is I work in Uber Eats, so even though here also I'm developing things for the restaurant owners who are like onboarding to, but still since वो app पे features exist करते हैं, so I am able to see that. Like मैंने एक feature पे काम करा where I developed something for them, so I'm able to open the app and check out all those features and show that to my friends as well or my family as well. And Okay. that gives you a different feeling like कि तुम अपनी चीजें करो. I think B2C aspect नया explore करने को मुझे मिला मुझे. So that is very different. Nice. And how was it as a software engineer too? Like, how was the responsibilities change, and how is your perspective change towards your? Obviously, responsibilities and also change hota hai. But like it wasn't much different to the way I was operating at Sprinkler already because उधर मैं already I think SD2 के level पे operate तो कर ही रहा था, I guess, because like I was mentoring juniors. I was also got chances to lead my own teams. Summer interns जा रहे थे, they were reporting to me as well. तो वहाँ पे already टीम लीड करना और ये सब अपॉर्चुनिटीज मुझे मिली थी, एंड टू एंड प्रोजेक्ट स्टार्ट से फिनिश तक ले जाना पूरी टीम को. सो आई यूज्ड टू गेट दीज अपॉर्चुनिटीज देयर एज वेल. So it mostly translated to how I operate at Uber as well. Okay. But the difference is, अगर like if you want a clear distinction between an SG1 and SG2, SG1 is expected to code कर देगा, ठीक है, तुम उसको टास्क दोगे वो कोड कर देगा, ठीक है. SG2 is expected कि तुम उसको प्रोजेक्ट दोगे, प्रोजेक्ट को मतलब स्टार्ट से फिनिश तक लेके जाना, उसको कोड करना, सब कुछ. He can handle everything. So that is the major difference. Apart from that, छोटे मोटे differences होते हैं. They need to mentor juniors. They need to be involved in actively be involved in the hiring of company. ऐसे वो सब differences obviously होते हैं.
Okay, as you mentioned hiring, you are actively involved in that. So now let us get back to tech industry and the job market. So basically, my question is for the future of tech industry and job market. The buzzword in the tech right now is AI and the impact of it on tech industry and job market. यानी लोगों के तो बहुत अलग-अलग और बहुत extreme opinions भी हैं about that. ये क्या lead कर सकता है software engineering is dead or what not. So what is your opinion? ऑब्वियसली डिफरेंस तो ऐसे बीच में भी इससे पहले भी बात हो रही थी जस्ट सेट किया जैसे टैप 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 यू जस्ट प्रेस दैट एंड एआई कोड लिख रहा है ठीक तो ऑब्वियसली डिफरेंस है एआई इज वेरी वेल एबल टू एंटिसिपेट व्हाट काइंड ऑफ कोड आई वांट टू राइट व्हाट इज द थिंग आई एम ट्राइंग टू अचीव राइट नाउ क्योंकि वो सराउंडिंग कोड को सो इट इज आल्सो एबल टू अंडरस्टैंड द पैटर्न्स जो कि हम करंट कोड बेस में फॉलो कर रहे हैं सो इट इज एबल टू रेप्लिकेट दोस पैटर्न्स and do all those things. So I think like it is at a very good level, but not at a level कि वो मुझे replace कर सके मुझे एज एन किसी को किसी एक इंजीनियर को बट आई वुड से कि करंटली इफ यू आस्क एआई किस लेवल पे ऑपरेट कर रहा है तो इट्स एटलीस्ट कोड लेवल वाली ये चीजें इट इज परफॉर्मिंग एट पार विद लाइक ओवर 1+ ईयर एक्सपीरियंस SD1 कोडिंग में इट इज इनफैक्ट कोडिंग वो मेरे से भी बेटर कर लेता है कभी बार क्योंकि ऐसे होता है कि हमें फ्रीक्वेंटली लैंग्वेज और टेक्स्ट स्टैक लाइक चेंज करना पड़ता है व्हेन वी चेंज कंपनीज so obviously you don't have that time to build the same expertise you had in the previous tech stack in the new one but AI को वो दिक्कत नहीं आती है it already has expertise in all the tech stacks it can write the most optimized code most optimized I'm saying is according to the framework not according to the algorithm but Mhm. it can write the best code out there from the start as it is तो obviously उस चीजों में हेल्प करता है एंड इफ यू आस्क लाइक व्हाट्स इट इसका इम्पैक्ट क्या है टेक इंडस्ट्री पे एंड हायरिंग पे तो मतलब थोड़ा देखो हायरिंग में इम्पैक्ट डायरेक्ट नहीं है कि एआई जॉब्स खा रहा है वैसा नहीं है बट इट इज मेकिंग द एवरेज सॉफ्टवेयर इंजीनियर मच मोर प्रोडक्टिव देखो पहले जैसे यूनिट टेस्ट होते यूनिट टेस्ट करते थे फिर मैं देखता था अच्छा यहाँ पे कोई मॉकिंग का इशू है कुछ और इशू है छोटा सा वो सब मुझे खुद डीबग करना पड़ता नाउ आई डोंट नीड टू डू दैट मैं बस इसको देता हूँ ये मैंने चेंजेस करे मैंने पैच कॉपी कर लिया गिट का सॉरी को पायलट को दे देता हूँ एंड आई जस्ट टेल हिम कि राइट यूनिट टेस्ट फिर उसका अपना आइटरेटिव प्रोसेस है वो पहले टेस्ट लिखता है फिर चला के देखता है अगर टेस्ट फट रहा है तो फिर से जाके फिक्स करेगा फिर वो फिर से चला के देखेगा एंड मतलब मैंने कभी उसको 1 से 2 बार चलाते हुए देखा मोस्टली कर लेता है बस उसको दिक्कत तो आती है कि जब अगर मतलब 5-6 लेवल डीप जा रही है चीजें ठीक है तो मतलब वहां पे वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वो अभी depth में चीजों को अंडरस्टैंड करना ऑब्वियसली इज नॉट अभी Okay, so like you beautifully explained that how is the AI is being used in the tech industry right now. Sir, like as you said, कि, like आपको hiring के बारे में idea तो हो how is it going in Uber. So what do you think the expectations are changed from the juniors like us? और एक और like सुनने में आ रही है that in some rounds, in some technical rounds जैसे पहले नहीं होता था, like recruiters are even asking the juniors कि तुम कर्सर वगैरह यूज कर सकते हो जस्ट लेट अस बिल्ड द प्रोडक्ट जो हमने तुम्हें क्वेश्चन दिया डू दैट इवन बाय यूजिंग एवरीथिंग जस्ट शो द सो इज दैट ट्रू if yes if no like at what extent So the difference I am seeing in hiring right now is that obviously since engineers ज्यादा productive हो गए तो मतलब मैं अगर मेरे को दिख रहा है कि इंजीनियर ज्यादा प्रोडक्टिव है आई वुड वांट कि एक सीनियर इंजीनियर को ही मैं और प्रोडक्टिव बनाऊं राइट मैं उसी को हायर करूं व्हिच इज आल्सो व्हाट इज रेप्लिकेटिंग इन द हायरिंग मार्केट राइट नाउ SD1 लेवल पे हायरिंग थोड़ी सी ड्रॉप हुई है ठीक है इफ यू सी द ऑफिशियल डेटा एज वेल मेरे को मैंने कहीं पे देखा था आई एम नॉट रिमेम्बरिंग व्हिच एग्जैक्ट सोर्स इट वाज बट इट हैज ड्रॉप ठीक है फॉर 0 to 1 year एक्सपीरियंस एंड 1 to 2 year अबव 2 year इट इज इंक्रीजिंग थोड़ा स्लाइटली इंक्रीज आया वहाँ पे बट मतलब सीनियर लेवल्स पे हायरिंग ऑलवेज रहती है क्योंकि वहाँ अच्छे कैंडिडेट्स कम होते हैं बिकॉज पिरामिड शेप्ड होता है ऊपर कैंडिडेट्स ही कम होते हैं ठीक है बट नीचे वाले लेवल्स पे क्या है कि अब जैसे ऊबर पर्टिकुलरली तुमने पूछा तो ऊबर का मैंने जो देखा है वो लाइक SD1 हायर जो है वो डायरेक्ट ऑन कैंपस हो रहे हैं उससे मतलब थोड़े बहुत करते हैं ठीक है SD2 हायरिंग तो काफी चली रही है एंड सेम मैंने दूसरी मेरे जो दोस्तों की कंपनी थी वहां पे भी सिमिलर ट्रेंड देख रहा हूँ कंपेयर टू पहले SD1 काफी हायर होते ही थे ऑफ कैंपस एज इन लाइक 1 year एक्सपीरियंस पे भी हो सब तो आई थिंक वो मार्केट में ओवरऑल ट्रेंड थोड़ा अभी मुझे कम होता दिखा है कि अब वो जनरल SD2 और थोड़ा मुझे जो एक चीज और देखी है मार्केट में पहले से डिफरेंट अर्लियर SD2 बार यूज टू बी वेल अबव 3-4 years अराउंड मतलब 3 years तक तो जाती थी
ठीक है, बट नाउ आई एम सेइंग कि इजीली मैं भी एक साल में बन गया SD2 एंड लाइक आई एम सीइंग अदर पीपल आल्सो अचीव सिमिलर थिंग्स एंड आई थिंक दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ टेक इंडस्ट्री ज्यादा फास्टर रेट एंड एवरीवन अंडरस्टैंड्स कि ठीक है तुम जल्दी वो वाले चीज को अचीव कर पा रहे हो, तो इट्स अबाउट यूटिलाइजिंग द टूल्स टू योर बेनिफिट। ठीक है, एंड वन लास्ट थिंग दैट आई नोटिस इज जो नए फ्रेशर्स आ रहे हैं दे आर मतलब हैविंग स्लाइट डिफिकल्टी इन लर्निंग थिंग्स बिकॉज ना एआई पहले अगर किसी डेवलपर को कोई चीज आती है, किसी इंजीनियर को कोई चीज आती है, एआई जितना उनको एनेबल कर रहा है उतना ही एआई नए लोगों को ब्लॉक कर रहा है चीजें सीखने से, क्योंकि वो खुद ही कर लेता है सब कुछ। Yeah. जनरली मैं भी अभी जो पैटर्न फॉलो करता हूँ, इफ आई एम ट्राइंग टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज और अ न्यू फ्रेमवर्क और समथिंग न्यू, और आई एम ट्राइंग टू बिल्ड मतलब समथिंग फॉर प्योरली लर्निंग, तो मैं एआई को या कोपायलट को, जो भी कर्सर कोपायलट, मैं उसको अपने पर्सनल वर्कस्पेस में डिसेबल कर देता हूँ। आई गेट टू नेविगेट ऑन माई ओन एंड मतलब फिर चैट जीपीटी तो ऑब्वियसली रहता ही है मेरे पास, तो बट दैट इज चैट जीपीटी को मुझे एक्टिवली रीच आउट करना पड़ता है, वो प्रोएक्टिवली मुझे आके सजेशन नहीं, ठीक है, तो दैट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। तो इसलिए चैट जीपीटी को मैं मतलब अपने वर्क स्पेस में उस प्रोजेक्ट के लिए मैं डिसेबल कर देता हूँ, सो दैट आई कैन एक्चुअली एक्सप्लोर थिंग्स एंड लर्न थिंग्स ऑन माई ओन। Okay. So as you said, the conclusion which I can draw from it is कि SD1 में like what you can say is tech के अंदर break करना is becoming slightly tougher and like उसके अंदर senior level पे hiring is increasing. So obviously the competition would rise for the entry level jobs. और उनको बीट करने के आपका क्या सजेशन होगा कि अगर ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन को बीट करने के लिए इन दिस मार्केट? यू आर गेटिंग द क्वेश्चन रॉन्ग साइडली। क्वेश्चन होना चाहिए कि देखो शॉर्ट टर्म सक्सेस eventually you need to aim for long term success and you are able to do things in a better way than others, तभी तुम ग्रो करोगे। यू आर बेटर एट इंजीनियरिंग, यू आर बेटर एट अदर थिंग्स। तो मेरा आंसर वहाँ पे चेंज नहीं करेगा, मैंने पहले भी जो बोला था कि फोकस ऑन योर फंडामेंटल्स, बिल्ड प्रोजेक्ट्स एंड लर्न, क्योंकि वो हायरिंग वैसे होती है। these three things remain common। फंडामेंटल्स ऑफ यू आर ऑलरेडी ahead of others, बाकी लोग इस पे नहीं फोकस करते। प्रोजेक्ट्स को इंजीनियरिंग वाले बनाओगे rather than ऐसे कि अच्छा एक फुल स्टैक एप्लीकेशन ये बना ली, फिर एक सेम फुल स्टैक एप्लीकेशन अलग कुछ, ठीक है, तो नहीं होगा। Systems वगैरह बनाने से नहीं होगा। तुम बना रहे हो दैट इज नॉट अ बैड थिंग। तुमने नेटफ्लिक्स फोन बनाया, तुम व्हाट्सएप फोन पे चल, ये बुरी बात नहीं है। बात इसमें क्या है कि मैं ये नहीं बोला कि मैंने भी यही सब गलतियां की, मैं ये करता क्लोन क्लोन बनाया, क्योंकि ट्रेंड और चल रहा है। अब तुम क्लोन बना रहे हो तो ज्यादा वैल्यू पता है क्या है? जैसे तुमने नेटफ्लिक्स क्लोन बनाया, तो अब तुम उसको बस फ्रंट एंड करना है, उस पर वीडियो स्ट्रीमिंग का एक खुद से बैकएंड सर्वर बनाने का तुमने वो बना दिया, तो ट्राई करो यूआई पे बाइट रेट स्ट्रीमिंग खुद से इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, कि तुम्हारा इंटरनेट कनेक्शन के बेसिस पे अपने आप वो डिसाइड कर पा रहे कि कैसे स्ट्रीम करना है। जैसे तुम्हारे वीडियो के क्वालिटी अपने आप बदल जाती है, वीक इंटरनेट पे 780p 360p पे चले जाता है, स्ट्रॉन्ग इंटरनेट आता है। तो ये अपने आप बाइट रेट स्ट्रीमिंग वगैरह कैसे इंप्लीमेंट करनी है, ये सब जितना तुम कॉम्प्लेक्स चीजें इंप्लीमेंट करोगे तुम्हें भी मजा आएगा, एंड दोज आर मोर वैल्यूएबल, वो ज्यादा तुम्हें स्पॉटलाइट में लाएंगी। ठीक है, ओपन सोर्स इज ऑलवेज अ गुड। ठीक है, so if you have time, you like or have main interest be and you are naturally gravitating towards that, so you can explore it। और अगर मतलब लोग पूछते हैं कि ओपन सोर्स करना कैसे, शुरू करना कैसे, अरे शुरू करो, बेस एक्चुअली इसको यूज करना शुरू करो, तो इसको यूज करोगे तुम्हें समझ आएगा ये क्या करते हैं, फिर उसके बाद उसके अंदर। I want to like add a follow up to that. So you discussed about projects, you discussed about open source, right? So what is your opinion on building public? Like this is the word which is like very much circulated right now in the like juniors among us. So what uh, do you think is the correct interpretation of building public? How should we do that, and how much is it value? बिल्ड इन पब्लिक का एंटायर सेंस ही दो चीजों से है। ठीक है, बिल्ड इन पब्लिक करना है, दो दो सेंस यही है कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू गेट सम अकाउंटेबिलिटी। अगर तुम्हारे दोस्त वगैरह इसमें कर रहे, यू नीड सम सॉर्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी। तुम रोज करते रहो कि अगर तुम पोस्ट कर रहे हो, तुम्हें लगेगा कि आज पोस्ट नहीं करा तो थोड़ा मतलब तुम्हें सोशली ऑकवर्ड फील होगा कि भाई आज लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज वन बेनिफिट टू दैट, एंड सेकंड इज ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूशन, कि तुम एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अपना सेट एस्टेब्लिश कर रहे हैं जहाँ लोग तुम्हें फॉलो करते हैं। तो इवेंचुअली इफ यू हैव दैट, you are more valuable as an individual। so I obviously align with that, that is a very good thing to do। जैसे तुमने आजकल पोस्ट वगैरह देखी होगी कि तो डिस्ट्रीब्यूशन इज अ वेरी, आई थिंक इट इज अ वेरी गुड थिंग टू हैव इन टुडेज वर्ल्ड। इट गिव्स यू मच मोर लेवरेज देन a lot of other things। अगर तुम if you are open to doing that, I would say it is a very good thing to have, क्योंकि it will open a lot of opportunities for you that you didn't even think you had। क्योंकि
your visibility becomes more, so a lot of people would reach out to you from themselves. You won't have to, reach out every time for a new opportunity. Right. Perfect. So yes, we have finally reached to the end of this podcast. Before ending, for the closure, I just want to ask you one question. As always, I do that. What looking back at your journey, what do you think that you did right, and what is something that you think you did wrong? Even though once you have mentioned this quote that from Steve Jobs, that when you look back, dots always connect. But still, if you can mention something that you think that will help juniors कि ये चीज शायद उन्हें नहीं करनी चाहिए to be a better. अगेन मैं मेरा वो जो तुमने बोला ही मेरा जो मैं कोट करने ही वाला था कि डॉट्स ऑलवेज कनेक्ट व्हेन यू लुक बैकवर्ड्स या सो एज आई वाज सेइंग लाइक मेरा आंसर इसमें वही है जो तुमने ऑलरेडी थोड़ा कोट करा ही है आई वुड से दैट ओनली डॉट्स ऑलवेज कनेक्ट बैकवर्ड्स सो इट्स नॉट व्हाट आई डिड राइट इट्स व्हाट आई डिड वर्क फॉर मी एंड तभी आज मैं महत्व पॉडकास्ट पे आ रखा हूँ तभी आज मैं इतना समझ पाया हूँ कि हम पे पॉडकास्ट दे पा रहे हैं ठीक है एंड व्हाट यू शुड नॉट डू ऐसा कुछ नहीं है व्हाट यू शुड नॉट डू इलीगल काम मत करो ठीक है जो करो कोई रोक टोक नहीं है Anyway, बाकी पॉडकास्ट बाकी कन्वर्सेशन अपने आप में ही काफी अच्छी थी इन टर्म्स ऑफ जो बाकी लोगों को अच्छा खासा गाइड कर देगी. So first of all, thank you for being so honest and real, and for being open to yani, guiding juniors twice. I think this episode gonna help a lot of people who are still figuring stuff out like me. So yeah, thank you. My recording software.